So it's day 17 and today we'll be solving this smallest missing genetic value in each subtree. So I'll just like the question basically is find the max of a subtree, and you have to do this for all the subtrees. So just to summarize what the problem is saying, one second, yeah, okay. So suppose you have these nodes, okay, and there are some values given to each of the nodes. So suppose the value over here is 1, यहाँ पे you have 3, यहाँ पे you have 4, let's just say यहाँ पे you have 5 and यहाँ पे you have 2. ठीक है. So and all these nodes also have an index. So this is the 0th node, first node, second node, third node and the fourth node. So the index of the node is different from the value assigned to the node, and so you have to return a array of the size of the number of nodes in this subtree, which is 5, and each of those values should be the max of each of the subtrees. So for the 0th index, what is the so this is the 0th node, right? So what is the value of this whole, what is the max of this subtree? So what is max basically? So max is the smallest missing positive integer. So यहाँ पे you have 1 2 3 4 5, so the max is 6. And let's go to node 1. For this particular subtree, the smallest missing positive number is 1. ठीक है, 1, हाँ. Then let's go to node 2. The For this particular subtree we have 1, we don't have a 2, so here we go with 2. Similarly for this subtree, you don't have a 1 in its subtree, the smallest missing positive number is 1, so यहाँ पे you will put a 1. Similarly for 4 you will put a 1. So this is the answer for this particular subtree. So this is the question. I wanted to solve this using Euler 2, but I wasn't able to do that. Maybe some other day during these 75 days I'll solve this problem again with that concept. But yeah, for now this can be done using simple DFS. Like you all know, like we recently solved a problem on mix. So like suppose before solving that, try solving this. Given a particular array which has some continuous streams, how would you find the max at each index? So if you know how to do this, we would use a set, we would insert, then we would erase, and then we would find the max. Okay, so just try to solve this, and then also we can, like, after that you come back to the tutorial. Okay. So what you need to figure out here is this node which has the value as 1 is a very key node, like it's a very important node. And why does this particular node matter? That's because every node, like suppose there would have been a much larger subtree, okay? So for every subtree below this 1, the value of each particular node in this array would have been 1. Obvious reasons, right? Because they don't have a 1 inside the subtree. So you would consider, so each node ka subtree would have the answer as 1. Now for, and similarly for this particular case also, the subtree on the other side of the tree would also have all, like suppose there would have been a bigger subtree over here also, so for all of these subtrees also the answer would be 1. The only concern you have is what about इसके ऊपर वाले नोड्स? सपोज लाइक ऊपर और बहुत कुछ होता, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले जो नोड्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है जिनके सब ट्री में 1 आता है? So those are the like that's the actual tough part, not tough part, that can be handled easily. ठीक है, so now let's come back. So again it's like a simple solution. So what you'll have to do is ठीक है, ये extra nodes हटा देते हैं. So I am maintaining a set because if you look at the question, what they have said is there are 10 raised to 5 genetics values. So I use that because that's how I solve MaxK problems, but it's up to you how you solve MaxK problems. So what I do is so I find this particular node, ठीक है, ये जो मैंने highlight किया ये node, और अगर there is no node, suppose there is no node with value as 1, with value as 1 मतलब तुम्हें बेसिकली 1,1,1 ही रिटर्न करना है, क्योंकि जब 1 है ही नहीं पूरे ही सब ट्री में, तो जस्ट सिंपली रिटर्न ऑल वंस, बिकॉज दैट्स द मिसिंग वैल्यू, और वो कोई सब ट्री में नहीं है क्योंकि किसी का वैल्यू 1 है ही नहीं. ठीक है, नाउ वंस यू हैव डन दैट, व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम्हें यहाँ से ना अपना डी एफ एस स्टार्ट करना है दिस पर्टिकुलर 1 से,
एंड वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि ठीक है, तो मैं वो रिकर्शन करते करते खुद ही समझ आएगा. सो लेट्स जस्ट चेंज इसका कलर. सो व्हाट विल डू इज़ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो पहले मैंने क्या किया ना, सपोज़ ले लो यहाँ पे ना, जस्ट फॉर आर प्रॉब्लम हम 10⁵ जेनेटिक वैल्यूज़ नहीं रख रहे. ठीक है, ये गायब हो जाता है कभी कभी. हाँ, हम 10⁵ जेनेटिक वैल्यूज़ नहीं रख रहे, हम 10 रख रहे हैं कि देयर वुड बी ओनली 10, लाइक मैक्स टू मैक्स 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़. तो पहले मैंने एक सेट बनाया. ये सब वैल्यूज़ तो मैं क्लियर है ना, 1 2 5 3 4 जो भी है. ठीक है, तो पहले मैंने एक सेट बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सब पुश कर दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया था. एक्चुअल में 1 ही 5 बोला है, बट हमारे केस में समझो कि 10 बोला होता. फिर मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड इज़ आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड, करंट नोड. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नोड, मुझे इसके ऊपर ऊपर जाना है टिल द टाइम आई रीच द रूट नोड. एंड फिर क्योंकि मुझे इनका ही आंसर सॉल्व करना है, लाइक इफ़ यू थिंक क्लोजली, इसका आंसर 1 होने वाला है, इसका आंसर 1 होने वाला है, इसका आंसर 1 होने वाला है. एक्चुअल कंसर्न तो बस इस पार्ट का है, क्योंकि ये जो बाकी मैंने रेड जो ये कलर से मैंने हाईलाइट किया है ना, इन सब का आंसर फाइनल अरे में 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके सब ट्री में 1 नहीं है. तो तुम्हें आंसर किसका ढूंढना है, जिसके सब ट्री में 1 आता है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड जिसका वैल्यू 1 है, एंड तुम एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हो. क्योंकि तुम एक एक स्टेप ऊपर जाओगे तो यू विल बी कंसिडरिंग ओनली दोज नोड्स जिनका वैल्यू 1 है. करेक्ट. सो नाउ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, सो आई वुड रन अ डी एफ एस ऑन दिस, और मैं ये सारे वैल्यूज़ अपने नोड में से हटा दूंगा. सो आई वुड रिमूव अ 2, रिमूव द 2, आई रिमूव क्या क्या वैल्यूज़ है, सॉरी 1 3 4 है राइट वैल्यूज़. ये 1 3 4 अपने सेट से हट जाएंगे. सो आई एम रिमूविंग माई 1, आई एम रिमूविंग माई 3, आई एम रिमूविंग माई 4. अभी इस 1 का आंसर क्या है, सेट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू बचा है, विच यू कैन ईजिली गेट, मतलब C++ में यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम सेट डॉट बिगिन. ये मेरा मेथड है मैक्स सॉल्व करने का. यू कैन ऑब्वियसली मेंटेन अ मिसिंग काउंटर ऑल्सो. तो मेरा इसका आंसर मेरे पास आ गया 5, सॉरी 2, क्योंकि मेरे सेट में सबसे छोटा एलिमेंट अभी 2 है, और तुम्हें पता है सेट में मिनिमम एलिमेंट निकालना लाइक ईजी. तो ये 2 मिल गया. अभी तुम एक स्टेप ऊपर जाओगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड में. अगेन यू विल रन अ डी एफ एस, बट तुम अभी यहाँ पे वापस नहीं चलाओगे डी एफ एस. बेसिकली तुम अपना एक विजिटर जैसा मेंटेन करोगे. मैंने सेट में मेंटेन किया. सो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं डी एफ एस अगेन चलाऊँगा, आई विल चेक बिफोर रनिंग अ डी एफ एस फॉर अ नोड, उसके चाइल्ड नोड्स में आई विल चेक कि क्या वो सेट में अवेलेबल है. सो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसका वैल्यू क्या था 1, क्या 1 मेरे सेट में है, नहीं, मतलब वो ऑलरेडी उड़ चुका है, तो मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं है. आई विल गो टू दिस साइड, मैं बोलूँगा ये इसका वैल्यू है 2, मैं बोलूँगा डू आई हैव दिस 2 इन माई सेट, हाँ मेरे पास है, लेट्स रिमूव दैट. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नीचे अगर एक और नोड भी होता जिसका वैल्यू ले लो 6 होता, तो मैं उसके नीचे भी आता और ये 6 को भी उड़ाता. ठीक है, फिर सपोज़ इवेंचुअली मैं ऊपर आ जाता, फिर मैं चेक करता अभी मेरे सेट का मिनिमम वैल्यू क्या है. सो इट्स अ 5, सो इसका वैल्यू स्टोर हो जाता 5. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फिर ये 5 भी तो उड़ता, यहाँ भी एक 5 है, फिर मैं उसको भी उड़ाता. सो यू वुड रिमूव दिस 5 ऑल्सो, एंड व्हाट्स द मिनिमम एलिमेंट लेफ्ट नाउ, दैट्स 7. सो यहाँ पे 7 आ जाता. एंड ऐसे करते करते तुम, और बाकी जो भी अभी वैल्यूज़ बचे हैं ना, जो भी वैल्यूज़ अभी बचे सबका आंसर 1 है. इस पूरे सब ट्री का आंसर 1 है. यहाँ पे जो भी नोड्स है सबका आंसर 1 है. अभी बाकी जो भी आंसर बचे थे सबका आंसर 1 है. सो यू स्टार्ट, तो मैंने तो दो चीज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, ये वाला जो पार्ट था, क्योंकि मुझे पता है वहीं से आंसर चेंज होने वाला है. उसके नीचे सबका आंसर 1 है, और फिर मैं धीरे धीरे एक एक ऊपर जा रहा हूँ. ये ऊपर जाने का पॉइंट क्या है, मैं बस वो नोड्स कंसिडर करूँगा जिनके सब ट्री में 1 आता है. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई कोडिंग दिस यू कैन गो अहेड, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस. सो सिमिलरली वही जो मैंने बोला, पहले मैंने वो नोड ढूंढा जिसका वैल्यू 1 है, सो नोड आई. देन मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाया, वो डी एफ एस में इट वुड हेल्प. ठीक है, देन आंसर इनिशियलाइज़ कर दिया, और आंसर में पहले तो सबका वैल्यू 1 सेट कर दिया. और अगर मुझे नोड -1 है, मतलब मुझे कोई नोड मिला ही नहीं जिसका नम्स वैल्यू 1 है. नम्स यू नो ना, कि जो उसे वैल्यू असाइन किया है वो नम्स अरे में दिया है हमको, मतलब हमको वंस नम्स अरे में दिया है. नाउ अगर कोई नोड नहीं है जिसका वैल्यू 1 है, यू विल रिटर्न द आंसर. अदरवाइज़ यहाँ से वो मिक्स वाला टेक्निक स्टार्ट हो जाता है, विच आई यूज़, एंड जो थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी लेता है, बट हाँ तुम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो बाय मेंटेनिंग अ मिसिंग काउंटर. नाउ तुम करंट नोड से स्टार्ट करोगे, एंड व्हाट इज़ दिस नोड जिसका वैल्यू 1 था, जिसका नम्स वैल्यू 1 था.
एंड यू वुड कीप रिपीटिंग दिस स्टेप अंटिल अनलेस करंट नोड -1 नहीं हो जाता, मतलब यू आर गोइंग अबव एंड अबव, पेरेंट के पेरेंट तुम जा रहे हो बार बार. सो मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप में आई एम रिमूविंग द वैल्यूज इनसाइड दैट नोड. नाउ इफ़ यू सी दिस फंक्शन, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड DFS है, एंड मैं तभी एक DFS को आगे लेके जा रहा हूँ अगर मुझे सेट में उसका वैल्यू नहीं मिला तो दिस आई नो यू कैन ईजिली, सेट का नीड नहीं था बट ठीक है. तो अगर सेट में उसका वैल्यू मिल गया तो ही मैं वहाँ पे वापस DFS चलाऊँगा, और उससे और कोई नोड दो बार कभी भी विजिट नहीं होगा. इफ़ यू थिंक एक बार सेट से हट गया तो हम वापस उस नोड में नहीं जाएंगे. नाउ वंस दैट इज़ डन, मैंने उस नोड के मतलब उस नोड के सब ट्री के सारे वैल्यूज़ एक बार हटा दिए. मेरा आंसर ऑफ करंट नोड इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दैट सेट, एंड देन आई वुड गो वन स्टेप अबव, दैट इज़ माई पेरेंट्स ऑफ करंट नोड, एंड देन इवेंचुअली आई वुड रिटर्न माई आंसर. तो दैट्स इट. इसको और अच्छे कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर सकते, विच आई विल बी सॉल्विंग, लाइक आई अगेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सम अदर डे विथ लाइक यूजिंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक ऑलर टूर और यूनिफाइंड. बट हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.